बैक टू अवर चैनल डिसाइड। सो SPSC की मॉक 2 आज हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस आपको एन में मिलेंगे। पहले 100 MCQ होंगे, आप अटेम्प्ट करें उसको। OMR शीट आपको कल की तरह डाउनलोड के लिए मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ही। मैं तो सजेस्ट करूँगी कुछ एटलीस्ट डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें अपने पास एक साथ, ताकि आपको बार बार प्रिंट ना करना पड़े, ठीक है। और अटेम्प्ट इसको करें। किसी ने कहा इररिलेवेंट है आपके MCQ, किसी ने कहा काम के हैं, तो मैंने सोचा कि जो काम के बोल रहे हैं उनके लिए अपलोड कर लेते हैं। 100 MCQs हैं, चले शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कुछ और भी मॉक्स जो है आने वाले दिनों में शेयर करूँ, देखते हैं कितनी हो पाती हैं। जितनी भी हो पाएंगी इंशाल्लाह शेयर करेंगे जब तक एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर एडिशनल MCQs क्योंकि करंट अफेयर्स के वगैरह भी रहते हैं, वरना फिर वो कर लेंगे, ठीक है। मॉक्स मैं सोच रही हूँ 4-5 एटलीस्ट करें। चले अब शुरू करते हैं। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन है, when and where was hockey introduced for women in Olympics? A. 1908 at London, B. 1980 at Moscow, C. 1936 at Berlin, D. 1924 at Paris। तो इसका आइडिया क्या है आप मार्क करके लिखें अपने पास। FFC stands for dash। A. Foreign Finance Corporation, B. Film Finance Corporation, C. Federation of Football Council, D. none of the above। Number 3. Under which article in 1968 the number of votes required in Security Council to convene a general conference to review the charter was increased from 7 to 9? A. Article 81, B. Article 98, C. Article 01, D. Article 115। The term butterfly is associated with dash: A. Kabaddi, B. Swimming, C. Boxing, D. Wrestling। Who was the head of provisional government of Russia in 1917? A. Lenin, B. Dennett, C. Alexander Kerensky, D. Louis Pasteur। Number 6. Peru is located in the continent of dash: A. Asia, B. Europe, C. Africa, D. South America। Number 7. Lima is the capital of dash: A. Bolivia, B. Fiji, C. Chad, D. Peru। Number 8. Who wrote Much Ado About Nothing? Much Ado About Nothing. A. Margaret Atwood, B. Adolf Hitler, C. Shakespeare, D. none of these। Number 9. Which is Gurab? A. Animal, B. Bird, C. both A and B। ये A and B होगा, A रह गया, D. none of these। Number 10. The capital of Tasmania is dash: A. Montevideo, B. Wellington, C. Caracas, D. Hobart। Number 11. Who wrote the Gettysburg Address? A. Abraham Lincoln, B. Hillary Rodham, C. Andrew Symonds, D. Bram Stoker। Number 12. Who wrote the famous sleuth character Sherlock Holmes? A. Charles Dickens, B. Conan Doyle, C. Stephenson, D. none of these। Number 13. Who was the first Chief Justice of USA? A. John Marshall, B. Anne Varian, C. John Jay, D. Jane Venix। Number 14. Which city is known as Eternal City? A. Jerusalem, B. Jaffna, C. Paris, D. Rome। Number 15. What is the official language of Benin? A. English, B. Spanish, C. French, D. Danish। Number 16. The headquarters of ICAO are at dash: A. London, B. Montreal, C. Geneva, D. Rome। Number 17. North Magnetic Pole is located in dash: A. Siberia, B. Canada, C. Greenland, D. Victoria Land। Number 18. The name of Tanzania's parliament is dash: A. Bunch, B. Ratha Saptha, C. Nitijila, D. Riksdagen। The world's shortest street is dash: A. Fleet Street, B. Lombard Street, C. Canal Street, D. Ebenezer Street। Number 20. The first man to climb Mount Everest twice was dash: A. Tenzing Norgay, B. Sharat Sangha, C. Noam Gombu, D. none of these। Number 21. Practically, very little work could be completed in last week as it was dash: A. Full of working days, B. A very hectic week,
C. Full of holidays. D. A very busy week. Number 22. Extreme old age. When a man behaves like a fool. इसका वन वर्ड सब्जेक्ट बताना है. A. Imbecility. B. Senility. C. Dotage. D. Superannuation. Number 23. Synonym of meek is dash. A. Tame. B. Stingy. C. Jab. D. Frail. Number 24. Which of the following is correctly spelled word? A. Swollen. B. Philpant. C. Licentious. D. Pucelle. Number 25. The man said no. I refuse to confess guilt. नरेशन है ये, यानी कि डायरेक्ट नरेशन. तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा ये आपको बताना है. ऑप्शन है इसमें ए. द मैन emphatically refused to confess guilt. नंबर बी है द मैन refused to confess his guilt. Number C है the man told that he did not confess guilt. D. The man was stubborn enough to confess guilt. Number 26. Though he has a lot of money, yet all his plans are built upon sand. The idiomatic expression means A. Established on insecure foundations. B. Based on inexperience. C. Resting on cheap material. D. Resting on immature ideas. Number 27. Helen has dash headache. A. B. And C. The D. No article. Number 28. One who draws map and charts. वन वर्ड सब्जेक्ट इसका बताना है. A. मैपर. B. lexicographer. C. ग्राफोलॉजिस्ट. D. कार्टोग्राफर. नंबर 29. एनोलॉजी बतानी है. स्केल्स टू फिश तो क्या होगा? A. bear to fur. B. woman to dress. C. skin to man. D. tree to leaves. नंबर 30. कैंडल्स टू विक. इसको ऑप्शंस क्या होंगे? A. हैमर टू नेल. B. लाइट टू बल्ब. C. ओवन टू फायर. D. बाइसाइकिल टू व्हील. तो अब देखना है कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है. आप मार्क करें इसको, फिर एंड में देखेंगे इसको. Mountain is related to hill in the same way as river is related to dash. A. path. B. swimming. C. flowing. D. tank. What will be your attempt to complete next? यहाँ पे next क्या है? A. noun. B. adjective. C. adverb. D. preposition. No act of dash was more pronounced than his refusal of any rewards for his discovery. A. abeyance. B. denunciation. C. abnegation. D. submission. Number 34. अब इसमें देखना है कि कौन सा जो है वो किस में मिस्टेक है या किस में कुछ है. ठीक है. द बस इज सो ओवर क्राउडेड दैट देयर इज़ नो प्लेस फॉर एनी वन एल्स. तो एरर डिटेक्ट करना है इसमें. अब देखना है कि आपको ये ए है जो पोर्शन आपको बताया हुआ ये वाला पोर्शन. ठीक है. ये बी पोर्शन है. इस तरीके से करके आप ये देखें कि ऑप्शन किस में मसला है. ए में मसला है, बी में मसला है, सी में मसला है या फिर डी में मसला है. We visited the site, dash the rain stopped. A. when. B. before. C. since. D. after. Number 36. Dash stranger is known to dash persons in the locality. A. the and few. B. a and few. C. the and a few. D. a and few. ये रूल से आपको आई होप पता होंगे. इनको ज़रा देख ले रिव्यू करके, तो उसके बाद जो है इसको बताइएगा क्या आंसर क्या है. मतलब चीटिंग मत कीजिएगा अभी तो अंदाज़ा लगा, लेकिन बाद में रूल्स देख लीजिएगा इसके भी. चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड पेडेंटिक. ए. लर्न. बी. क्वालिफाइड. सी. जॉक. डी. इग्नोरेंट. नंबर 38. क्योंकि मोबाइल पे आजकल मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यूट्यूब पे ताकि आसानी से हो, तो वो व्हाट्सएप के आते रहते हैं. खैर, एंटोनिम ऑफ कॉन्शियस इज डैश. ए. थॉटफुल. बी. विकेड. सी. नेग्लिजेंट. डी. साइंटिफिक. नंबर 39. आई हैव नो ऑब्जेक्शंस डैश द प्रपोजल मेड बाय द किंग. ए. ट्रू. बी. फॉर. डी. ऑन. डी. फ्रॉम. Number 40. Humans have good bone structure and a well-developed immune system. The sentence is dash. A. simple. B. compound. C. complex.
D. Compound and complex. Arab ruled Sindh for dash years. A. 125 years. B. 145 years. C. 130 years. D. 120 years. 42. Number 42. There are dash districts in Sindh. A. 29. B. 31. C. 30. D. 32. Number 43. Who wrote Mirza Sahibin? A. Hafiz Barkhurdar. B. Waris Shah. C. Fazal Shah. D. Hashim Shah. Kalari Lake is in dash. A. Thatta. B. Hyderabad. C. Shehzadkot. D. Sangar. Number 45. First poet of Sindhi was dash. A. Shah Abdul Latif. B. Shah Karim Bulri. Okay. C. Mirza Khalid Beg. D. Sajal Sarmat. अब मैथ के क्वेश्चन है थोड़ा सा 10:99 देन 9:dash, तो इसका बताना है A 69 है, B 80 है, C 97 है, D 49 है। तो आपको बताएं कौन सा राइट आंसर है। ओके, लुक एट दिस सीरीज 53, 53, 40, 40, 27, 27। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? A 12 होगा, B 14 होगा, C 27 होगा, D 53 होगा। 48. 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? I think ये रिसेंटली भी आ भी चुका है MCQ, तो इसको आपको आना चाहिए ये वाला था। A 35, B 40, C 45, D 50। आगे चल के हम इसको सॉल्व ज़्यादा करेंगे। The average of 20 numbers is 0. Of them, at most, how many may be greater than 0? A 10, 0, B 1, C 10, D 19. A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total age of A, B and C be 27, then how old is B? तो आपको बताना है ये चीज़। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन होपफुली आप कर लेंगे, आसान होते हैं, वरना हम करवा देंगे। Number 51. Which of the following is in liquid form at room temperature? A. Lithium, B. Sodium, C. Francium, D. Cerium. Which of the following causes poliomyelitis? Sorry, मुझे इस प्रोनाउंस में थोड़ा सा इशू है। A. Dengue virus, B. Enterovirus, C. Mumps virus, D. Rhabdovirus. 53. Reading of a barometer going down is an indication of dash. A. Snow, B. Storm, C. Intense heat, D. Rainfall. Number 54. 1 joule is equal to dash. A. 10 power 15 ergs, यानी कि 10 power इस तरीके से, ठीक है। B. 10 power 3 ergs, C. 10 power 7 ergs, D. 10 power 11 ergs. The atmosphere of Mars is mainly dash. A. Oxygen, B. Nitrogen, C. Hydrogen, D. Carbon dioxide. 56. The ozone layer is at the height of dash from the surface of the earth. A. 10 to 20, B. 20 to 30, C. 30 to 40, D. 40 to 50. 57. Okay. A colorblind person can't distinguish between dash. A. White and yellow, B. Red and green, C. Red and black, D. Green and black. Number 58. Which of the following diseases is caused due to allergic reaction? A. Asthma, B. Leprosy, C. Typhoid, D. Tetanus. Number 59. Which of the following chemical is used for preserving fruit juices? Fruit juice, right? Dash. So A. Sodium hydroxide, and B. Ammonium sulfate, C. Sodium benzoate, D. none of these. Number 60. Which variety of glass is heat resisting dash? A. Hard glass, B. flint glass, C. bottle glass, D. Pyrex glass. Number 61. Cryogenics is a science dealing with dash. A. Growth of crystals, B. high temperature, C. friction and water, D. low temperature. Number 62. Which of the following deals with tumor? A. Serology, B. Ornithology, C. Oncology, D. Chronology. Chronology सही है। Earth's crust below the oceans is composed of dash. A. igneous rocks, B. sedimentary rocks, C. metamorphic rocks, D. slag.
The most salty water body in the world is dash. A. Dead Sea, B. Lake Assal, C. Red Sea, D. Ural Sea. Number 65. Which of the following is biodegradable? A. Paper, B. DDT, C. Aluminum, D. Plastic. Number 66. The sea breeze blows during dash. A. A day from land to sea, B. Day from sea to land, C. Night from land to sea, and D. Night from sea to land. 1 degree of longitude on equator is equal to distance of dash. A. 34.5 miles, 50 miles, C. 69 miles, D. 80 miles. Year is longest dash. A. Jupiter, B. Mercury, C. Neptune, D. Earth. Number 69. A piece of wood is floating in water. If we heat the water, the wood will dash. A. Increase in size, B. Rise a little, C. Float at same level, D. Sink a little. ये भी important है. Number 70. Clear nights are colder than cloudy nights because of dash. A. Conduction, B. Radiation, C. Insolation, D. Condensation. Number 71. In which country was the world's second largest diamond recently unearthed? A. South Africa, B. Namibia, C. Botswana, D. Lesotho. Which country is currently the largest importer of Russian oil? A. Turkey, B. India, C. Japan, D. China. Number 73. Which country banned the Clooney Foundation for Justice? A. Russia, B. United States, C. United Kingdom, D. Ukraine. Which country will host the first BIMSTEC business summit in 2024? A. Japan, B. UK, C. India, D. Sri Lanka. Which country is implementing a visa-free policy for 35 European countries? A. Ukraine, B. Belarus, C. Poland, D. Russia. Number 76. Recently, Dick Schoof has appointed as the Prime Minister of which country? A. Netherlands, B. Ireland, C. Poland, D. Vietnam. Number 77. Who became the United Kingdom UK first female Muslim Lord Chancellor? A. Shabana Mahmood, B. Shireen Ebadi, C. Nargis Fakhri, D. Sultana Razia. Number 78. Who won the men's single title in Wimbledon Open Tennis Tournament 2024? A. Andy Murray, B. Roger Federer, C. Charles Alcaraz, D. Novak Djokovic. Number 79. Which country hosted the 46th edition of UNESCO World Heritage Committee 2024? A. USA, B. France, C. India, D. Japan. Number 80. A NATO Summit 2024 held in dash. A. Vilnius, Lithuania, B. Washington DC, USA, C. New York, USA, D. Amsterdam, the Netherlands. 81. Who wrote Tarikh-e-Ferozi Shahi? A. Al-Biruni, B. Amir Khusro, C. Ziauddin Barni, D. Minhaj-ul-Siraj. Number 82. The author of Jinnah, creator of Pakistan is dash. A. I.H. Qureshi, B. Munir Ahmad, C. Stanley Wolper, D. Hector Bolito. After Siachen, the second largest glacier of Pakistan is dash. A. Baifo, C. Hisper, C. Bathura, D. Baltaro. Number 84. The first Indian ruler to organize Hajj pilgrimage at the expense of state was dash. A. Khilji, B. Balban, C. Feroz Tughlaq, D. Aurangzeb. 85. When did Alexander invaded India? A. 336 BC, B. 326 BC, C. 330 BC, D. 332 BC. Under the 26th Amendment, the seats of FATA in National Assembly increased from 6 to dash. A. 8, B. 10, C. 12, D. 14. The Basic Principle Committee was formed on March 12, 1949 to draw the future constitution of Pakistan by Governor General dash. A. Iskandar Mirza, B. Ghulam Muhammad, C. Khwaja Nizamuddin, D. None of these. Number 88. Pakistan constructed Dash Canal under Indo-Pacific Treaty. A. 9, B. 8, C. 6, D. 4. 89. Simon Commission arrived on India on dash. A. Feb 3, 1928, B. June 4, 1928,
C. July 5, 1928. D. August 15, 1927. Number 90. Kachura Lake is located some 99 km from Dash. A. Gilgit. B. Skardu. C. Astor. D. None of these. Number 91. The nuclear test for measured Dash on Richter scale. A. 4.5. D. 4.7. D. 4.8. D. 4.9. 92. Governor of Punjab province is considered as Dash. A. Administrative chief. B. Constitutional head. C. Judicial chief. D. None of these. Who is current Attorney General of Pakistan? A. Khalid Jawad Khan. B. Mansoor Usman Awan. C. Shehzad Ata Ilahi. D. None of these. After how many years Pakistan won gold medal in Paris Olympic Games? A. 38 years. B. 40 years. C. 36 years. D. None of these. Pakistan is ranked 95 है. Pakistan is ranked dash out of 142 countries on the World Justice Project's Rule of Law Index. A. 120. B. 130. C. 125. D. 140. 96. As per Henley Passport Index released in July 2024, Pakistan's passport permit visa-free access to how many states? A. 36. B. 30. C. 33. D. None of these. Number 97. How many times has Pakistan won Hockey World Cup for men? A. 5 times. B. 3 times. C. 6 times. D. 4 times. Number 98. The current Islamic year is dash. A. 1445 AD. D. 1446 AD. C. 1447 AD. D. None of these. What is the name of Turkey foreign minister who visited Pakistan for a 2-day official visit on May 19, 2024? A. Mr. Ali Yerlikaya. B. Mr. Ahmad Davutoglu. C. Mr. Hakan Fidan. D. None of the above. Number 100. Pakistan's export to European countries declined -% in the first 9 months of the current fiscal year 2024. A. 6.27%. B. 5.61%. C. 4.53%. D. None of these. तो इसके आपको राइट आंसर्स बताने हैं अब तकरीबन जो है हाफ आवर तकरीबन हो गया होगा मुझे भी लेकिन जो है अब आप पूरा एक आवर लें, ठीक है, अपने पेक में चले जाएं, बेशक स्लो स्लो करके करें लेकिन करें और ऑप्शंस करेक्ट फिर आके देखें ताकि आपका वाकई में एग्ज़ाम जो लगे कि हो रहा है, ठीक है। सो अब हम जो है आंसर्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स में सही है, इसका कितने स्कोर आता है। आई विल सजेस्ट आप काइंडली ट्राई करें और बताएं कमेंट में कि कितना स्कोर आता है ताकि आइडिया हो। इंक्लूडिंग नेगेटिव करके बताएं कि नेगेटिव के पहले कितने आते हैं, नेगेटिव के बाद कितने आते हैं। कोशिश करें 100 अटेम्प्ट करें फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब आंसर को देख लेते हैं। So फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज हॉकी इंट्रोड्यूस फॉर वुमेन इन ओलंपिक्स। तो 1980 में मॉस्को जो समर ओलंपिक्स हुआ था उसमें जो है ये इंट्रोड्यूस किया हुआ था हॉकी वाला में, ठीक है। वुमेन को हॉकी तब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं FFC स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर है बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आई थिंक ये इंडियन स्टेट ने फंडिंग की थी टू सपोर्ट द सिनेमा इंडस्ट्री। Okay, under which article in 1968 the number of votes required in the Security Council to convene a general conference to review the charter was increased from 7 to 9। तो ये 1968 में हुआ था और आर्टिकल था 109 UN चार्टर का, ठीक है, जिसमें ये हुआ था। ये मैंने एडिशनल डिटेल भी लिखी है, वो इंक्रीज द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू कन्वेन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ओके, द टर्म बटरफ्लाई इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग। ऑब्वियसली बात है, स्विमिंग में हम दोनों हाथ से हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है बटरफ्लाई बना रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए स्विमिंग इज द राइट आंसर। हु वाज द हेड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट रशिया इन 1970। तो अलेक्जेंडर केरेंस्की जो है वो उस टाइम पे हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट है। पेरू इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ डैश। तो पेरू जो है साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। साउथ अमेरिका से मुराद है ये है मेन अमेरिका हमारा, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे पेरू कहीं पे है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, आई थिंक यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। आपको मैप भी बनाना आना चाहिए, वर्ल्ड मैप, इनकेस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर पेपर्स के लिए, ठीक है, तो फिर आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लीमा इज़ अ कैपिटल ऑफ डैश। तो उसका राइट आंसर है डी पेरू।
हु रोट मच अदो अबाउट नथिंग, इसका राइट आंसर है सी विलियम शेक्सपियर. व्हाट इज कॉल गुराब. तो ये बर्ड है गुराब. अरबिक वर्ब, ठीक है. इसको हम क्रो जो है वो कहते हैं, ठीक है. इन मतलब के वो कौवा, ठीक है ना. तो आई थिंक गुराब जो है वो अरबिक वर्ड है. इसको हम बर्ड कौन सा है, ये क्रो, ठीक है. ये मैंने थोड़ा सर्च किया हुआ है इस पर. द कैपिटल ऑफ तस्मानिया इज डैश. तो उसका राइट आंसर है होबार्ट. और ये कहाँ पे है कॉन्टिनेंट में, ये है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आई गेस. ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में तस्मानिया ये भी जो है वो, ये होबार्ट जो है वो है जिसका फुल कैपिटल तस्मानिया. ये कैपिटल तस्मानिया है कंट्री, उसका कैपिटल है होबार्ट, ठीक है. और जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है ये. हु रोट गेटीबरी एड्रेस. तो उसका राइट आंसर है इब्राहिम लिंकन. और ये आई थिंक ड्यूरिंग सिविल वार हुई थी, अमेरिकन सिविल वार इन 1863. उस टाइम वाला ये मामला है. एड्रेस थी, उसको शायद कंसीडर किया था गेटीज एड्रेस. गेटीज बर्ग होगा, ये बरी नहीं है, बर्ग एड्रेस है. हु रोट द फेमस सिल्यूट कैरेक्टर शेरलॉक होम्स. तो इसका राइट आंसर है बी कोनन डायल, ठीक है. हु वर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए. तो उसका राइट आंसर है जॉन जे, जिन्होंने सर्व किया था आई थिंक फ्रॉम 1789 टू 1795, ठीक है. अब जो है नंबर 14 को देख लेते हैं. विच सिटी इज नोन एज एटर्नल सिटी. तो रोम को एटर्नल सिटी कहा जाता है. द रीज़न फॉर दिस इज क्योंकि उसकी हिस्ट्री और कल्चर सिग्निफिकेंस इस तरीके का है, इसलिए. व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बेनिन. तो ऑफिशियल लैंग्वेज बेनिन की है फ्रेंच, क्योंकि वो फ्रेंच की कॉलोनी रह चुकी है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICAO आर एट डैश. तो इसका राइट आंसर है मॉन्ट्रियल. और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इनकेस अगर फुल फॉर्म भी आ जाए पेपर में तो आपको पता होना चाहिए. नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज लोकेटेड इन डैश. तो उसका राइट आंसर है कनाडा में, यानी कि आर्कटिक वाली साइड पे, ठीक है. द नेम ऑफ तंजानियास पार्लियामेंट इज. तो इसका राइट आंसर है बंच. बंच का मतलब है असेंबली. और ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, सवाहिली. कौन सी लैंग्वेज है, मैंने पहले बाहर नाम सुना है उसका. अच्छा. द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट स्ट्रीट इज. तो उसका राइट आंसर है डी इबनसा स्ट्रीट. और जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है शॉर्टेस्ट स्ट्रीट भी कहा गया है इसको, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है. द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज डैश. तो इसका राइट आंसर है सी नवाग गंबू. ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने जो है ना दो बार जो है ना वो चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पर, ओके. Practically very little work could be completed in the last week as it was full of holidays. तो इसका आंसर सी होगा. Extreme old age when a man behaves like a fool. इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा, सी डॉट एच. Synonym of meek इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका है ए टैम. Which of the following is correctly spelled word. तो licentious जो है वो correctly spelled word है. The man said no, I refuse to confer guilt. तो इसका राइट आंसर है ए. The man emphatically refused to confer the guilt. Though he has a lot of money, yet all his plans are built upon sand. The idiomatic expression means इसका मतलब है establish an insecure foundation. मतलब कोई सिक्योर फाउंडेशन नहीं है, ऐवी मतलब हवा में तीर चला रहे होते हैं. मतलब जो टूट जाए जो प्लान्स, तो वो वाले प्लान्स हैं. मतलब के अच्छे वाले प्लान्स नहीं है जिसकी फाउंडेशन बिल्ड हो, बस ऊपर ऊपर से प्लान होते हैं, नीचे से देखते नहीं है कि जो है वो सक्सेस होंगे भी या नहीं. हेलन हैज़ डैश हेडेक. हेलन हैज़ अ हेडेक, ठीक है. सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विथ कंसाउंड नाउन, तो वो इस वजह से उस पर ए काउंट होगा इसमें.
वन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स, तो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है डी, कार्टोग्राफर। एनोलॉजी क्या है? स्केल्स टू फिश, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बियर टू फोर। ठीक है, एक मिनट में फिर भी कंफर्म कर लेते। अच्छा, इसमें डाउट है थोड़ा सा। वैसे तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने किस वजह से ये मार्क किया है, क्योंकि स्केल्स जैसे जो है मतलब कि जो उस पे उगते हैं फ़िश के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो फ़िश को कवर करते हैं पूरा, जिस तरीके से बियर को फुल कवर करता है। तो अब यहाँ पे ऑनलाइन पे कहाँ पे जो है वो ट्री टू लीव्स कर रहे हैं, कह रहे हैं, और कहीं पे स्किन टू मैन कह रहे हैं। किसी को अगर इसका राइट आंसर मिल जाता है तो काइंडली कमेंट डाउन कर लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, एनोलॉजी कैंडल्स टू विक, तो क्या होगा? लाइट टू बल्ब होगा। कैसे? क्योंकि जैसे कैंडल्स जो है, कैंडल्स में विक होता है जो कि उसको मतलब कि रोशनी देता है, जिस वजह से वो चलती है। इस तरीके से लाइट किससे चलती है? बल्ब की वजह से चलती है। ठीक है, इसका इंटरनल कंपोनेंट वही होता है। माउंटेन इज रिलेटेड टू हिल, इज सेम एज रिवर इज रिलेटेड टू डैश, तो रिवर इज रिलेटेड टू टैंक होगा यहाँ पे। और मैंने चेक किया, आई थिंक ये वाला राइट आंसर है, ये मैंने गूगल पे भी वेरीफाई किया था। व्हाट विल यू अटेम्प्ट टू कंप्लीट नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर है नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे है एडजेक्ट, आई गेस। एक मिनट, अच्छा मैंने वैसे मार्क तो एडजेक्टिव किया, लेकिन मैंने सर्च किया है तो एडवर्ब भी आ रहा है कहीं कहीं पे। द रीज़न फॉर इस के नेक्स्ट जो है मोस्टली ऑर्डर फॉलो करता है, इंडिकेटिंग द फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब कि किसी किसी ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं तो हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो इस वजह से जो है एडवर्ब कंसिडर होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सी एडवर्ब ही होगा। नो एक्ट ऑफ डैश वाज प्रोनाउंस दैन हिज रिफ्यूजल फॉर ऑफ एनी रिवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी, इसको राइट आंसर है सी, एब्नेगेशन। इसको रेफर करते हैं सेल्फ डिनायल, विच इज़ द, मतलब कि इस पे इस हमारे कॉन्टेक्स्ट पे परफेक्ट फिट कर रहा है। ठीक है, द बस इज डैश बी सो ओवर क्राउडेड दैट देयर इज नो प्लेस फॉर एनीवन एल्स, इसमें एरर डिटेक्ट करना है हमें, तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। इसको हम जो सी को है ना मोर फॉर्मली हम लिख सकते हैं, हम इसको देयर इज नो प्लेस को लिखने की इसलिए की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मल वे उसका थोड़ा सा अलग होगा, इस वजह से इसमें एरर है। वी विजिटेड द साइट डैश द रेन स्टॉप्ड, तो उसका राइट आंसर है आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, इज़ द करेक्ट कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन है ये हम जो हमने यहाँ पे यूज़ किए। Number 36, dash stranger is known to the person in the locality, तो यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे few। ठीक है, choose the opposite meaning of the word pedantic, पेंडेंटिक की जो अपोजिट मीनिंग है वो है इग्नोरेंट, और जो है यस, इग्नोरेंट मीन्स लेकिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, और पेंडेंटिक मीन्स कंसर्न विथ रूल्स। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा कंसर्न होते हैं ना, मतलब कि रूल्स फॉलो करें, और मतलब हर चीज़ में परफेक्ट लोग होते हैं कुछ। ठीक है, और जो कहते हैं कि मतलब कि रूल्स हो, प्रॉपरली हर चीज़ हो, उसके बाद ही हम चीज़ें को फॉलो करें, तो वो वाले जो है पेंडेंट कहते हैं। और इग्नोरेंट मतलब कि खैर है, चलता है जिसमें एंटोनिम ऑफ कॉन्शियस इज डैश, तो इसका राइट आंसर है नेग्लिजेंट, क्योंकि कॉन्शियस का मतलब है डिलाइटफुल एक जगह। ठीक है, और वो केयरफुल। ठीक है, डिलाइटफुल अगर मुश्किल लग रहा है तो केयरफुल। ठीक है, और बाकी तो नेग्लिजेंट तो पता है सारे केयरलेस लोग। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस डैश द प्रपोजल मेड बाय द किंग, तो इसका राइट आंसर है ट्रू। Humans have good bone structure and a well-developed immune system. The sentence is simple because इसमें एक ही independent class है। ठीक है, ये बोन स्ट्रक्चर एंड वेल डेवलप एक ही चीज़ है, तो इस वजह से एक ही सेंटेंस में काउंट होगा ये। अरब रूल सिंस फॉर डैश ईयर्स, तो इसका राइट आंसर है 120 ईयर्स। और
स्टार्टिंग रूल हुआ था 712 AD से। सबको पता है मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। सिंध कंकर किया था टिल जो है 1850 AD तक जो है अरब का रूल चला था, ठीक है। तो तकरीबन ये 120 ईयर्स हो जाते हैं। अच्छा, देयर आर डैश डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध, तो उसका राइट आंसर है 30, सबको पता है 30 है। हु रोट मिर्ज़ा साहिबान, इसका राइट आंसर है बी वारिस शाह, ठीक है। पंजाबी हमारे जो है वो फोक हैं, फोक टेल है ये मिर्ज़ा साहिबान, ओके ओके। कल्ट्री लेक इज़ इन डैश, तो उसका राइट आंसर है ठट्ठा। और जो है इसको कल्ट्री लेक को किंजर लेक भी कहते हैं हम लोग। तो इन केस अगर आप किंजर लेक आता है तो एक ही बात हो जाएगी, ये इसका नाम है दूसरा। आई होप आई एम राइट। फर्स्ट पोएट ऑफ सिंधी, फर्स्ट सिंधी पोएट, जो फर्स्ट पोएट ऑफ सिंधी वाज ये शाह अब्दुल लतीफ़, आई थिंक नहीं होगा, शाह अब्दुल करीम बुलरी वाला होंगे। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ उसको भी। हाँ, क्योंकि 4 फादर थे उसके, शाह अब्दुल बिटाई जो है के शाह अब्दुल करीम बुलरी वाला, तो जो है आई थिंक वो ही राइट आंसर होंगे। सो मेक श्योर टू कंफर्म दिस ऑल्सो। और मैं नहीं चाहती कि किसी का भी गलत हो, तो इस वजह से जो है आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। बहुत सारे होशियार लोग होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं, हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं। मैं काफ़ी टच में नहीं हूँ ना काफ़ी टाइम से, इस वजह से। चलें अब अगले MC को देख लेते हैं। अच्छा, 10 to 99, तो 9 to क्या होगा, सही है। अब इसको हम करके देखते हैं प्रॉपरली। अब 10 को कर दें स्क्वायर, ठीक है, उसमें से -1 कर दें, तो कितना आता है 100 -1 इज इक्वल टू 99। मतलब इस तरीके से ये वाली वर्क कर रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 स्क्वायर -1, 9 9 का कितना होता है 81, -1 इज इक्वल टू 80। वेरी नाइस, हो गया। लुक एट दिस सीरीज 53 40 40 27 27, इस तरीके से चल रहा है। अब देखते हैं, माइनस करके देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। एक ही को माइनस करेंगे, यानी कि 53 - 40 करेंगे, ठीक है। 53 - 40 तो कितना आता है 3 और ये 1। और अगर 40 और 27 को माइनस करें तो आता है यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। आई थिंक 13 का जा रहा है, एक मिनट। 27 -13 करके देखूँ ज़रा मैं, 4 1, वाओ हाउ स्वीट। मतलब 13 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। इसमें 13 का डिफरेंस, इनमें नहीं, इसमें 13 का डिफरेंस है, ठीक है। जो भी है इनमें भी 13 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट कौन से आएंगे, 2 14 14 के आएंगे। वाओ, मुझे लगा गलत हो जाएगा, बट नहीं, सही हो गया। ओके, अब है क्वेश्चन, ये बार बार जो रिपीट होता है क्वेश्चन, इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके प्रॉपरली। अच्छा, इसको ना मैं छोटा छोटा करके लिखती हूँ ताकि जो है ना जगह पूरी हो जाए। अब 4 मैन है ना, इसको हम 4M कंसीडर करते हैं, ठीक है। और 4 वुमेन है ना, इसको हम 6 वुमेन है ना, इसको 6W कंसीडर कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू कितना है, 8 डेज का वर्क है, ठीक है। तो मतलब 1 डे का वर्क कितना होगा, हो जाएगा ये इसका 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब दोबारा दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। 3 मैन को 3M कर दें, लिख क्यों नहीं रही, लिखो, हाँ ओके। 7 वुमेन इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि M डिलीट हो जाए इससे, क्योंकि हमें फाइंड करना है वुमेन का, तो हम मैन का काम नहीं है हमें। तो अब इसको पहली वाली को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरी वाली को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, इसको हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 4 3s 12M प्लस 6 3s 18 वुमेन इज इक्वल्स टू, डिवाइड कितना हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 18। इस तरीके से ये 3M है, 4 3s 12 मैन प्लस 7 4s 28 वुमेन इज इक्वल्स टू 4/10। अब यहाँ पे इसको हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले 3 1s 3, 3 6 18, 4 1s 4, 4 1s 4 नहीं, 2 2s 4, 2 5s 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको, ये तो कट हो जाता है, ठीक है। बचता क्या है यहाँ पे, ये 28 में से ये कर ले तो 10 वुमेन बचती हैं। और अगर यहाँ पे इसको, अगर एक मिनट में
कर लूँ 1 अपॉन कितना है ये 6 बचा है और ये 2/5 बचा है। इनको हम आपस में थोड़ा सा ना करके देख लेते हैं, या फिर इसको एक मिनट रुकें, पूरी वैल्यू उठा लेते हैं ना। 3 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, और माइनस क्या करना है, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो आई थिंक ये उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 यहाँ पे कर लेते हैं, 18 क्यों करें, 180 करती हूँ मैं, पूरा करते हैं ताकि आसानी से हो। 180 तो ये हो जाएगा, कट हो जाएगा तो बचेगा 10, ये और इसको कट करेगा ना जब डिवाइड, तो 10 बचेगा। 10 3 30 माइनस 180 और इसके साथ करेंगे तो 18 बचेगा। 18 इंटू 4, 8 4 32, 4 1 4, 6 7 नहीं 5 6 7 72। आई होप कैलकुलेशन सही है, ऊपर नीचे ना हो गई हो। एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये मैंने गलती की है, यहाँ पे 18 नहीं है, ये 8 था। कहाँ की गलती मैंने कहाँ कर दी, एक मिनट मैं रिमूव कर लेती हूँ इसको ना। चलो इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं ताकि जगह बने। और ये भी 18 नहीं है, 8 है, ठीक है। ओके, अब लिख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब जो है इसको 8, ये था 3/8 था, माइनस 4/10, ठीक है। ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 10 तो 30 माइनस 8 4 32, ये हो जाएगा कुछ 2 -2 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। और यहाँ पे जो आया है ये भी माइनस वाली आई है वैल्यू, ठीक है, बड़ी वाली। यहाँ पे 2 1 2, ये 80 आ गया था ना, ये 2 1 2, 2 4 8, तो ये आंसर क्या आया यहाँ पे -1/40। ये कट हो जाएगा तो 10 वुमेन कितने देर से कंप्लीट करेंगी, 40, 1/40 तो मतलब 40 डेज में, मतलब कि एक वुमेन 10 वुमेन एक दिन में 140 काम करेंगी, तो 40 डेज में जो है 10 वुमेन जो है वो काम कर पाएंगी, ये जो रहता हुआ काम है, ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ 20, एवरेज ऑफ क्या है 20 नंबर इज 0, ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मैनी आर द ग्रेटर देन, उसके कितने हैं जीरोस के, मतलब कितना ग्रेटर होगा, तो 19 जो है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन 0 होंगे, और 1 जो है नो लाइक हो सकता है नेगेटिव में भी या फिर उसमें भी क्या कहते हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन 19 जो है एटलीस्ट पॉजिटिव नंबर होंगे, तब जाके जो है वो चांस है कि मैक्सिमम चांसेस जो है वो 19 होंगे कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। A is 2 years older than B, मतलब क्या है, A is equals to B प्लस 2, ठीक है। और कह रहा है B is twice as old as C, इसका मतलब है B is equals to 2C। और उसके बाद कहते हैं टोटल एज जो है दोनों की A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 27 है। बताएंगे B की एज क्या है, तो सबको प्लस करके देख लेते हैं। अब ये कह रहा था, सॉरी ये A इज इक्वल्स है ना, तो A की जगह लिखते हैं B प्लस 2, B को सेम रखते हैं, ये हमें फाइन B करना है तो बाकी सारी चीज़ों को B के इक्वल किया हुआ है, ठीक है। और C की जगह हम लिखेंगे क्या, B की जगह ये और C की जगह B इज इक्वल्स टू C था, तो C इज इक्वल से क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा B डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 27। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्लस कर ले, आई थिंक ये 2 ऐसे ही कर लेते हैं, खैर 2B प्लस 4 प्लस 2B प्लस B इज इक्वल टू 27। 27 को इधर भेजते हैं 2 को, तो 27 इंटू 2, 7 टू द 14, 2 टू द 4 5, ये हो जाएगा 54 यहाँ पे, और यहाँ पे 2B और ये 5B और ये प्लस 4, ठीक है। अब 4 को उधर भेज दें तो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50, और B इज इक्वल्स हो जाएगा 10। बाकी नमाज के बाद, आसान के बाद
ये अजान आ रही है, ठीक है, वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब है 51 हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? तो उसका आंसर है सी, फ्रेंशियम। वैसे तो मरकरी और हम लोग ब्रोमीन आई थिंक कहते हैं उसको, लेकिन जो है फ्रेंशियम भी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर होता है तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेस पोलियोमाइलिटिस? तो उसका राइट आंसर है बी, एंट्रो वायरस, ठीक है। इसका राइट आंसर भी हो गया। एक मिनट, हाँ, ये पोलियो वायरस की ही एक टाइप है, ठीक है। द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ डैश? तो इसका राइट आंसर है रेनफॉल, ठीक है। रीडिंग, हाँ सही है, रीडिंग बैरोमीटर गोइंग डाउन इज इंडिकेशन ऑफ रेनफॉल या फिर स्टॉर्म। अच्छा, इनमें दो आंसर्स होते हैं। इन केस अगर वो बिल्कुल सडनली ही डाउन हो गया है तो हम उसको स्टॉर्म कंसिडर करते हैं, अगर वो स्लोली डाउन हो रहा है तो फिर रेनफॉल कहते हैं उसको, ठीक है। 1 जूल इज 10⁻7 आर्क, यानी कि 10⁻7 इस तरीके से, ठीक है। द एटमोसफियर ऑफ मार्स इज मेनली डैश? तो उसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तकरीबन कहा जाता है कि 95% जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अबाउट 90%, हाँ ठीक है, कंपोज ऑफ एटमोसफियर, ठीक है। द ओजोन लेयर इज एट द हाइट ऑफ डैश फ्रॉम द स्ट्रक्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? तो इसका राइट आंसर है 10 to 20। ओके, इसमें भी थोड़ा सा इशू है, ये वाला राइट आंसर होगा। इसमें ऑलमोस्ट कहा जाता है कि जो है ना, ये है, अभी मैंने इसलिए गूगल किया है बैठ के, तो 10 to 25 माइल्स कंसिडर होता है, ठीक है, और 15 to 40 जो है वो किलोमीटर्स। तो अप्रोक्सीमेटली ये आप कंसिडर कर लें तो ये आंसर हमारा सही बनता है। अ कलर ब्लाइंड कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन डैश? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? रेड और ग्रीन में उसको पता नहीं चलता। वाह, मैंने ये पहली बार, मुझे लगा था कि आंसर होगा इसका वाइट एंड येलो, पर रेड एंड ग्रीन जो है इसका राइट आंसर है, उस पर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज काज्ड ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन? तो उसका राइट आंसर है एस्थमा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट जूसेस? तो उसका राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। Which variety of glass is heating resistivity? तो उसका राइट आंसर है पायरेक्स ग्लास, ठीक है। और उसके अलावा MCQ है साइरोजेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद डैश? तो उसका राइट आंसर है लो टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद MCQ है 62 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद ट्यूमर? तो उसका राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी, जिसमें ट्रीटिंग हमारे ट्यूमर्स वगैरह, जो कैंसर्स वगैरह होते हैं, वो ट्यूमर में स्टडी उसकी होती है, वो ट्रीट भी उसकी होता है उसमें। उसके बाद है हमारा MCQ 63, अर्थ क्रस्ट बिलो द ओशन इज कम्पोज ऑफ डैश? तो उसका राइट आंसर है इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है लाइक बसल्ट वगैरह जो भी होते हैं हमारे। उसके बाद हमारा MCQ है द मोस्ट साल्टी वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड इज? तो उसका राइट आंसर है रेड सी। कुछ लोग कह रहे हैं कि डेड सी भी है, सॉरी रेड नहीं, डेड सी है इसका राइट आंसर। और कुछ लोग जिसको लेक असल कुछ इस तरीके से भी कहते हैं, लेकिन जो है इतना वो नहीं है उसका। डेड सी इज़ द राइट आंसर, रेड सी नहीं है इसका राइट आंसर, ठीक है। ये मैंने पहले ही सर्च किया था, मैं मार्क चेक करना भूल गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? तो इसका राइट आंसर है पेपर, ठीक है। उसके बाद हमारा है द सी ब्रीज फ्लो ड्यूरिंग डैश? तो उसका राइट आंसर है डे फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है, फास्टर देन द वाटर, ओके। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डैश? तो उसका राइट आंसर है 69 माइल्स। और उसके लिए तकरीबन जो है ना, अगर किलोमीटर में इसको करें तो 1111 किलोमीटर हो जाएगा ये, ठीक है, एट द इक्वेटर, हाफ कोर्स सही है। ईयर इज़ लॉन्गेस्ट ऑन डैश? तो उसका आंसर है नेपट्यून, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूर है और तकरीबन जो है ना हमारे 165 अर्थ के जो हैं ईयर्स लेता है वो एक रिवोल्यूशन अराउंड द सन करने में, यानी कि हमारे जो है वो एक ईयर कंसीडर कर रहे हैं, उस हिसाब से 165 अर्थ, जिस कितना टाइम हो जाएगा वहाँ पे स्लो स्लो जो है आई थिंक लाइफ जाएगी। Okay. A piece of wood is floating in water.
इफ़ यू हीट द वाटर द पीस ऑफ वुड विल डैश। तो इसका राइट आंसर है ऑफ कोर्स राइस करेगा, यानी कि ऊपर आके वो करेगा थोड़ा सा ना, राइस करेगा। लेकिन आंसर ये सही नहीं है, आंसर ये सही है, मैंने गूगल करके देखा अभी भी सर्च करके। द इसमें लिखा हुआ वर्डिंग इफ अ पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर एंड वाटर इज हीटेड द वुड विल सिंक अ लिटिल। तो इसका मतलब राइट आंसर ये होगा, ठीक है। कहीं पे ये भी लिखा हुआ हीट वाटर इट वाटर विल राइज ओवर इट, बट ये सिंक अ लिटिल आई थिंक एग्जैक्टली द ऑप्शन है इसका। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ डैश। राइट आंसर इसका है रेडिएशंस, ठीक है। और नंबर 71 देख लेते हैं। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड रिसेंटली अनअर्थ। तो उसका राइट आंसर है बोट्सवाना। उसके बाद विच कंट्री इज करंटली द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। इसका राइट आंसर है डी जो है चाइना, नहीं, विच कंट्री इज लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। अच्छा ये चेंज हो चुका है, चाइना पहले हुआ करता था, अब ये है इंडिया हो चुका है। और जुलाई 2024 से जो है ये इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। अब इसकी जो है वो बढ़ चुकी है हमारी इंपोर्ट। तो इसका आंसर अब चाइना नहीं रहा, अब इंडिया हो चुका है। विच कंट्री बैंड द क्लोनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस। तो उसका राइट आंसर है ए रशिया। मैंने ये थोड़े से एमसी अपने पास खोल के भी रखे हुए वेरीफाई करने के लिए कि सही है नहीं। अच्छा, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन 2024। तो इसका राइट आंसर है इंडिया, सही है। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है हम अभी देख लेते हैं। बिजनेस समिट, एक मिनट, बिजनेस समिट तो नहीं होगा इसका फुल फॉर्म, एक, हाँ जी, पे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। कितना बड़ा नाम है, मतलब अगर ये फुल फॉर्म पूछ लें हम लोगों से तो हम तो गलत करके आ जाएं। इतना मतलब बड़ा, मतलब एक ही अगर अल्फाज भूल जाए तो इसलिए मैं आपको बता दी ताकि आपको खुद सर्च ना करना पड़े। मैंने खुद सर्च कर लिया। ओके, विच कंट्री इज इम्प्लीमेंटिंग अ वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर 35 यूरोपियन कंट्रीज। तो इसका राइट आंसर है बेलारूस। ये काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, आई होप आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट एमसी काफ़ी टाइम तक चला है। Recently, Dick Schoof has been appointed as Prime Minister of which country? तो उसका राइट आंसर है नेदरलैंड्स, ठीक है। उसके बाद है 77 हु बिकेम यूनाइटेड किंगडम्स फर्स्ट फीमेल मुस्लिम लॉर्ड चांसलर। तो उसका राइट आंसर है शबाना महमूद नाम है, और तकरीबन ये हुआ था आई थिंक 16 जुलाई 2024 वाले टाइम में, ठीक है। उसके बाद है हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024। जिसका राइट आंसर है कैरोस अल्काराज, और यस विंबलडन मेन सिंगल टाइटल, यस। विच कंट्री होस्टेड द 46th एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी 2024। इसका राइट आंसर है इंडिया। नेटो समिट 2024 हेल्ड इन, राइट आंसर इसका है आई थिंक वाशिंगटन में हुआ था, हाँ जी बिल्कुल, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। हु रोड तारीख फेरोज शाही, वाह व्हाट अ नेम। इसका राइट आंसर है सी ज़ियाउद्दीन बर्नी, और इसको जो है हिस्टोरिकल अकाउंट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ दिल्ली सुल्तनत वाले टाइम में यह मामला हुआ होगा, ठीक है। द ऑथर ऑफ जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। तो उसका है ऑथर तो स्टोनली वर्पर है आई थिंक, हेक्टर कैसे हो जाएगा। अच्छा यस, हेक्टर बोले तो जो है वो राइटर है जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान का, और जो हमारे स्टोनली वर्पर है वो जिन्ना ऑफ पाकिस्तान का है, ठीक है ना। आफ्टर सियाचिन द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज बायफू, ओके,
मैंने वैसे नाम ही पहले बार सुना है, बट अच्छा है, चलो इन्फो हो जाएगी। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हेल्थ पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट वाज डैश। तो इसका राइट आंसर है फेरोज तुगलक। ओके, स्टेट फंड्स की वजह से। व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? तो इसका राइट आंसर है 327 BC कहते हैं, 326 BC कहते हैं, एक ही बात है। अगेंस्ट किंग पोरस, यहाँ पे 26 है, 27 है, 26 होता तो ये भी एक बोलती थी मैं, 26 होता तो मैं 326 क्लिक करती, ठीक है। अब जो है किसके साथ ये किया था, एक मिनट, किंग पोरस, ठीक है। ओके, अब 86 पे आ जाते हैं। अंडर 26th अमेंडमेंट दैट सीट्स ऑफ फाटा इन नेशनल असेंबली इंक्रीज फ्रॉम 6 to 12। 6 to 8 तो नहीं होगा, 12 होगा। हाँ सही है। द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी और BPS was formed on March 12, 1949 to draw the future constitution of Pakistan by Governor General। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, और सजेस्ट किसने किया था, इनके एडवाइस वो लियाकत अली खान ने किया था, ठीक है। तो ये भी एज MCQ आपको आइडिया होना चाहिए इसका। पाकिस्तान कंस्ट्रक्टेड डैश केनाल्स और जो है अंडर द इंडस बेसिन ट्रीटी, तो 8 केनाल तकरीबन जो है क्रिएट कर चुका है। साइमन कमीशन अराइव ऑन इंडिया ऑन डैश, तो उसका राइट आंसर है जून, आई थिंक, नहीं इसका राइट आंसर ये नहीं है, इसका राइट आंसर है Feb 3, 1928। किस लिए आए थे, रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। कचूरा लेक इज लोकेटेड सम 29 किलोमीटर फ्रॉम स्कार्दू, ये इसका राइट आंसर है। ये कहाँ पे है, गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है, रीजन में, ठीक है, ओके। 91 हु बिकेम द फर्स्ट सिख मिनिस्टर इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो उसका राइट आंसर है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। ये तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या है, ए, ठीक है। उसके बाद है गवर्नर ऑफ पंजाब प्रोविंस इज कंसिडर्ड एज डैश, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कंसिडर किया जाता है उनका। हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो मंसूर उस्मान अवान इज द करंट अटॉर्नी जनरल। आफ्टर हाउ मेनी ईयर पाकिस्तान वॉन गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024, तो इसका है आई थिंक 40 ईयर्स के बाद है ना, चीज़ मैंने क्यों लिखा है जी, बिल्कुल आफ्टर 40 ईयर्स है। लास्ट टाइम जब हमने जीता था, ये तो अभी अरशद नदीम ने जीता था, लास्ट टाइम पे हमने जीता था, उस टाइम पे हमारा टाइम था 1984, तो अभी आप काउंट कर लीजिएगा, एग्जैक्ट 40 ईयर्स होते हैं। पाकिस्तान इज रैंक्ड आउट ऑफ डैश आउट ऑफ 142 कंट्रीज, किसमें, वन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, तो 130 पाकिस्तान का जो है वो रैंक है। और हेनली पासपोर्ट रिलीज इन जुलाई 2004, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो रैंक है विदा फ्री एसेस टू हाउ मेनी कंट्रीज, इंडेक्स रिलीज इन जुलाई, हाँ विदा फ्री पाकिस्तान में कितने कंट्रीज़ के लिए है, वो 33 कंट्रीज जो है बगैर पासपोर्ट के हम लोग जा सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ पाकिस्तान वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप फॉर मैन, तो इसका राइट आंसर है ये रॉन्ग है, 4 टाइम होता है, वही मेरे को 4 बार ही देता है पाकिस्तान। 1971, 1978, 1982, 1994, ठीक है, ये ईयर्स है जिसमें पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है। द करंट इस्लामिक ईयर इज़ ऑफ कोर्स 1446, इतना जल्दी जल्दी ये AD भी गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद है हु इज़ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द तुर्की फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड पाकिस्तान फॉर अ 2-day ऑफिशियल विजिट ऑन मार्च 2024, तो उसका राइट आंसर है सी, मिस्टर हाकान फिदान। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू यूरोपियन कंट्रीज डिक्लाइन, तो उसका राइट आंसर है 6.27, इसका राइट आंसर सही है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि अगर कोई मिस्टेक है तो मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ, और मैंने कर भी दिए हैं मोस्टली, सो काइंडली आप इसको देख लीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, एंड मेक श्योर अगर आपको वाकई में हेल्पफुल है तो आप बता दीजिएगा। वंस अगर आपको लगता है कि काम की नहीं होने वाली मॉक्स की, तो मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि अगर सामने वाले को हेल्प हो रही तो मैं वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं खुद भी अभी तैयार करके जाऊँगी, मतलब मैं पढ़ूँगी भी इनसे, मैं खुद भी इनसे पढ़ती हूँ जो वीडियोस होती हैं। द रीज़न मैंने इस तरह का फॉर्मेट रखा हुआ है
कि मतलब मुझे भी हेल्प हो जाए और आप लोगों को भी, क्योंकि इस तरह के फॉर्मेट में हम एक एक MCQ इस तरीके से करके करते हैं तो आई थिंक हमारा टेस्ट भी हो जाता है अच्छा सा और हमारी डिवीजन भी हो जाती है। MCQs में भी फॉर्मेट इस तरीके का और मॉक में भी आसानी रहती है थोड़ी सी। बट होपफुली आपको काम आए इसमें, और अगर किसी का भी आप में से हो जाएगा तो मुझे ही खुशी होगी। मैं भी दूंगी ये एग्ज़ाम ऑफ कोर्स। देखते हैं क्या होता है इस दफ़ा, अल्लाह करे हो जाए। मैं तो कह रही थी कि मेरी वजह से जो है ना तुम्हारा हुआ है कि कर लूँ इस दफ़ा क्लियर। होपफुली हो जाएगा सबका इंशाल्लाह। अपनी एफर्ट पूरी दें आप लोग, बाकी अल्लाह मालिक के जो भी होगा। सो सी यू सून इन अनदर वीडियो। मैं सोच रही हूँ कि कुछ मॉक्स कर लेते हैं, ज़्यादा मॉक्स नहीं करते, कुछ मॉक्स करते हैं और उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स वगैरह के भी MCQs देख लेते हैं, क्योंकि वो भी तो आते हैं ना। तो करंट अफेयर्स, कुछ जनरल साइंस वगैरह के थोड़े से टफ दे देते हैं वो, तो देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश करूँगी, या फिर मैथ्स के कुछ MCQs कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो कैश मार्क्स की तरह से होते हैं। देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ जो है ना थोड़ा सोचूँ इस पर, फिर लगाते हैं वीडियोस। मॉक्स तो आएंगी कुछ एटलीस्ट, लेकिन बाकी भी एडिशनल कुछ मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट अपलोड करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले और एक हिम्मत भी होती है ना। बहुत मेहनत लगती है, 1 घंटा लगता है कम से कम वीडियो रिकॉर्ड करने में, और उसके अलावा बनाने में तो आपको पता है कितनी मेहनत होती है। सो सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।